Good morning children. In the we have discussed some of the basic concepts of our chapter 4, simple equations. We have learned what are simple equations, and now in exercise 4.1 we will see that how we can solve our concept of simple equations while doing the exercise. Okay, so the very first question of exercise 4.1, a table is given to you. As you all can see in your NCERT book, the first question is complete the last column of the table. ठीक है, आपको 4 columns has been made. First column is of serial number, second column is of equation. You can take for example like serial number, and then equation is given. The very first equation is given as x plus 3 is equal to 0. Okay, and we have to check that whether when I will put x is equal to 3, this value I have to put in this left hand side, and then I have to check whether it is coming equal to right hand side or not. For example, x की जगह में 3 रखना है. If I will put 3 here, so 3 plus 3 will become 6. Means in left hand side I am getting 6. But in right hand side it is coming 0. So we can say that the equation is not satisfying. So in the third column we have to write no. Similarly, another equation is same, x plus 3 is equal to 0, and this time we have to put x is equal to 0. Again when I will put x is equal to 0, and when I will solve, I will found that on left hand side I am getting 3. 0 plus 3 is 3, but on the right hand side it is 0. So again we have to say that the equation is not satisfied. Okay, third part if you will look, it's again same equation. Equation is same, but this time we have to put x is equal to minus 3. Now just put this value in this equation, minus 3 plus 3. माइनस 3 और प्लस 3 को हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 0. ठीक है, सो इस नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज 0 एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो 0. सो इन दिस सिचुएशन आवर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, सो वी विल राइट इट एज यस. ओके, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपको कॉलम में लास्ट कॉलम को फिल करना है, जिसमें हमें सिर्फ यस और नो लिखना है. ठीक है, अगर आपका वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है वही वैल्यू अगर राइट हैंड साइड में आए, देन अवर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड. ठीक है, लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा सेम नहीं आ रहा है, देन इज नॉट सेटिस्फाइड. सो वी हैव टू सिंपली फिल यस और नो इन द गिवन इक्वेशन. ओके, नाउ कमिंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन नंबर 2 same parts you can do all the parts also same way. I can show you few more example. Let's see ninth part. Ninth part अगर आप इसी क्वेश्चन का देखेंगे, उसके अंदर है m/3 is equal to 2. Okay. In ninth part we have to put m is equal to minus 6. Now if I will put minus 6 here, minus 6 by 3, it will give minus 2. So it's not satisfied. In 10th part it is m by 3 is equal to 2, same equation. Now they are saying put m is equal to 0. Again this equation is not satisfied. Why? 0 upon 3 will give us 0. Okay, last part is m by 3 equation is same, and this time we have to put m is equal to 6. So when I will put this 6 upon 3 will give us 2. Okay, so left and right is coming equal. So we can say yes, the equation is satisfied. Okay, so in this way one by one we have to put all the values and we have to check whether our equation is satisfied or not. अगर लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करके जो भी वैल्यू आ रही है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो हम बोलेंगे कि हमारी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है. ठीक है, अगर बराबर
बोलेंगे नहीं होती है, राइट। नाउ सेम इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, ओनली द वे हैज बीन चेंज्ड। नाउ दे आर सेइंग check whether the value given in the brackets, as you can see in the question, in front of every part some value of the variable is given in bracket. So that particular value we have to put in place of variable, okay, and then we have to check whether the left hand side is coming to equal to the right hand side or not. ठीक है, बहुत difficult नहीं है. I will show you one example. Okay, look at question number 2. Question number 2 का अगर फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे, इसके अंदर है n plus 5 is equal to 90. I am writing the question only, and in bracket is given we have to put n is equal to 1. वैसे तो if I will do verbal calculation also, I can say that this is not satisfied. Okay, but let's show it. 1 plus 5 is equal to 6, which is not equal to 90. So you can write that this is not a solution of equation. ठीक है, जिससे वैल्यू सेटिस्फाइड होगी that will be solution of equation, और जिससे वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं होगी that is not a solution of equation. Similarly, we can check for B part also. This was A part. Now if I will look at B part, 7n plus 5 is equal to 90, and we have to check for n is equal to minus 2. ठीक है, minus 2 के लिए हम इसको चेक करेंगे. 7 into minus 2 plus 5, this will be minus 14 plus 5, and we will get answer as minus 14 plus 5 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, it is minus 9 again, which is not equal to 90. तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, not a solution, not a solution of equation. ठीक है, अभी हमने A और B को चेक किया है. C पार्ट को आप चेक करिए, n की जगह पे 2 रखना है. आप डायरेक्टली वर्बल करके देखिए, सेम इक्वेशन है. दिस इज द सेम इक्वेशन गिवन इन C पार्ट. नाउ पुट n is equal to 2. So instead of minus 2, if I will put 2, 7 2s are 14, 14 plus 5 90, which is equal to the right hand side. So we can say yes, n is equal to 2 is a solution of the equation. ठीक है, जिससे लिखा है not a solution, तो आप लिख देंगे C पार्ट में लिखेंगे n is equal to 2 is the solution of equation. Okay, so in this way our second question also we will do. You can do D part. D part में आपके पास इक्वेशन क्या है, 4p minus 3. Let us write the equation. D part में 4p minus 3 is equal to 30, और आपको पुट करना है p is equal to 1. ठीक है, 4 into 1 minus 3, 4 minus 3, which is equal to 1 but not equal to 13. So we can write not a solution. Okay, simple. Same way, E part, it's given, same equation is there, 4p minus 3, but in this time we have to put p is equal to minus 4 करके देखना है. 4 into minus 4 minus 3, minus 16 minus 3, which is equal to minus 19 but not equal to 30. So again it's not a solution.
सिमिलरली आप एफ पार्ट को भी देखेंगे, सेम इक्वेशन है, वी हैव टू पुट p इज इक्वल टू 0, 4 zeros 0 आ जाएगा, ओके, एंड देन -3, तो आंसर विल बी -3. अगेन इट्स नॉट इक्वल टू 13, so it's not a solution. So in whole question 2, only C part is the solution of equation, rest others are not a solution of the equation, right? Now when you will look at question number 3, question number, like whatever questions, see, first of all, have you understood this first and second question? It's very simple one, both were of same kind, in which we have to put the value of the variable which is already mentioned in the question. Okay, now while putting the value, if left hand side is coming equal to right hand side, then only we will say yes, it's satisfied, otherwise we will say no, it's not satisfied. Okay, तो ये 1 और 2 आपका सिंपल क्वेश्चन था, और इस एक्सरसाइज में आपके जितने क्वेश्चन, लाइक इन क्लास 6 you have learned algebra. In algebra you have learned how you can frame expressions. In that class you have not learned how to solve equation. ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना नहीं सीखा है आपने, सिर्फ एक्सप्रेशन को बनाना सीखा है. अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उसको बनाएंगे. ठीक है, ओके. नाउ व्हेन यू विल लुक एट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में हमें कहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड. ट्राई करना है, गलतियाँ करनी है. ट्राई मीन्स यू ऑल नो कोशिश, एरर मीन्स गलतियाँ. ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है, फिर गलती हो जाती है तो दोबारा कोशिश करनी है, और कोशिश हमें तब तक करनी है जब तक हमारी गलती बिल्कुल सही ना हो जाए और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए. राइट, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल वन ऑल्सो. लाइक फर्स्ट पार्ट 5p + 2 इज इक्वल टू 17. नाउ सी हम कैसे गलतियाँ करें. अब जैसे मुझे इसको ये नहीं बोला है सॉल्व करो, डायरेक्ट सॉल्यूशन बताइए, हमें बोला है सॉल्व करना है, पर ट्राई करते हुए सॉल्व करना है. ठीक है, ट्राई करते हुए, गलतियाँ करते हुए हमें सॉल्व करना है. सो आई विल ट्राई व्हाट आई विल ट्राई, दैट पुट p इज इक्वल टू 0. दिस इज माई फर्स्ट ट्राई कि मैं p की जगह पे क्या करके देख रही हूँ 0. तो 5 × 0 + 2, that is 0 + 2 is equal to 2, which is not equal to 17. So my first trial is unsuccessful. Now let's do the second trial. Put p is equal to 1. 5 × 1 + 2, 5 + 2 is equal to 7. Again not equal to 17. ठीक है, so you can see second trial is also unsuccessful. Now I will put p is equal to 2. अच्छा देखो, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है भाई नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो रख सकते हैं. राइट, वी कैन पुट नेगेटिव वैल्यूज़ ऑल्सो, बट सी जब भी आप कोशिश करते हैं साथ साथ में हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं, थोड़ा सा अपना लॉजिक भी यूज़ करते हैं. हाउ, देखो ऐसे नहीं कि बिल्कुल आँख बंद कर लिया कोशिश करते जाएं, ठीक है, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकले. दैट्स नॉट द वे. What we will do, we have to see that whatever trial I am doing, whether it is going close to my answer or not. Okay, so in this way I can reduce my trials also. ठीक है, जैसे मैंने देखा जब मैंने 0 रखा तो 2 आ गया, मुझे चाहिए कितना 17. 1 रखा तो 7 आया, थोड़ा पास जा रहा है. ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही रख के काम बनेगा हमारा. 5 × 2 = 10 + 2, that is coming 12, not equal to 17. Now one more try, put p is equal to 3. So this is 50 + 2, which is equal to 70. Therefore p is equal to 3 is the solution of the equation. ठीक है, तो देखो हमने कितनी कोशिश की, 1 2 3 4, 4 कोशिश की, जिसमें से हमारा 4th ट्रायल में वी गॉट द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो जस्ट कीप इन योर माइंड दैट व्हाइल डूइंग द ट्रायल
whether you are going in right direction or not. ऐसा नहीं हो कि भाई नेगेटिव वैल्यू से आए और आप पॉजिटिव रखते जा रहे हो, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आप लोग को. सेकेंड पार्ट ऑल्सो यू कैन सी. सेकेंड पार्ट में है हमारे पास 3m minus 40 is equal to 4. अब देखिए पहले तो 0 से शुरू करते हैं, आइडिया लग जाएगा किस डायरेक्शन में जाना है. 3 into 0 minus 40, सॉरी 3 into 0 minus 40, 0 minus 40 which is giving us minus 40. अब देखिए 0 रखने पे -14 आ रहा है, लेकिन हमें कहाँ जाना है, 4 के पास जाना है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो जाहिर से मतलब इससे कम तो नहीं रखेंगे, इससे हम ऊपर ही जाएंगे. अब जब इससे ऊपर जाना है आपको, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं डायरेक्टली 1 ना रख के 3 रख के देखती हूँ. 1 और 2 मैंने स्किप कर दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी ऊपर जाना है. तो m is equal to 3 रखा मैंने. It is 9 minus 40 which will give us minus 5. Again it's negative, और ऊपर जाते हैं. आपका मन हो तो जैसे मुझे लग रहा है 4 से भी नहीं कम बनेगा. 3 4 से 12 minus 14, तो मैं ट्रायल्स अपने कुछ कम करना चाहती हूँ. 5 रख के देखते हैं. 3 into 5 minus 40, 15 minus 40 is equal to 1. देखो अब थोड़ा पॉजिटिव वाली कैटेगरी में आ गए हैं. Now I will put which is not equal to 4, not equal to 4, not equal to 4. Now put m is equal to 6. 3 into 6 minus 40, 18 minus 40 is 4. Okay, therefore m is equal to 4 is the solution of the इक्वेशन. ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन आ गया. ओके, तो इस तरीके से बहुत इजीली आपने ट्रायल एंड एरर मेथड से क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया. हमने कोशिश की और हमें ये देखना है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं वेदर इट्स गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट. ओके, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ओके, नाउ सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 4, काइंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 यू हैव डन इन क्लास 6 ऑल्सो. क्लास 6 में आपने सीखा था कि कैसे आप स्टेटमेंट से एक्सप्रेशन बनाओगे, और अब थोड़ा सा एडवांस हो रहे हैं उससे. बस हम एक्सप्रेशन ना बनाकर हम लोग क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं. ठीक है, इक्वेशन बनाना हम लोग देखिए कैसे इक्वेशन बननी है. इसके लिए स्टेटमेंट के मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझना है. सम का मतलब होता है प्लस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई. देखो प्लस में क्या क्या आ सकता है, सम, मोर. ओके, प्रोडक्ट में क्या क्या आ सकता है, प्रोडक्ट, टाइम्स, डबल, ट्वाइस, थ्राइस. ओके, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम दिखाई देगा आपको. ओके, माइनस वर्ड यूज होगा, डिफरेंस वर्ड यूज हो सकता है. ठीक है, डिवाइड में डिवाइडेड बाय, लाइक दैट वर्ड्स कैन बी यूज्ड. ओके, सो व्हेन आई विल टेक द फोर्थ क्वेश्चन, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको करने में. जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या है, द सम ऑफ. सम सुनते ही मैंने क्या लगा दिया, प्लस. किस किस का सम करना है, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4. तो एक x है और दूसरा 4 है. ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, इसका मतलब होता है इक्वल, इज 9. ठीक है, तो बहुत सिंपल इक्वेशन थी आपकी. वैसे सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y. अच्छा, सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर है, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर या जो भी वेरिएबल लिखा है वो पहले आए. बिकॉज व्हेन यू विल ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट इनटू हिंदी, लाइक 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, 2 को माइनस करो इसमें से, तो जिसमें से करोगे उसको पहले लिखोगे ना, तो ये आप सेट कर लीजिए दिमाग में, बिल्कुल परमानेंट मेमोरी में आपको फीड करना है that whatever is coming after from will come first. Okay, so 2 subtracted from y is 8. y
-2 is 8. ठीक है. Now you will look at third part. Third part is 10 times a is 70. देखो 10 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई a, तो डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं 10 इंटू ए करूँगी तो कितना आ जाएगा 10a आ जाएगा. ओके 10 टाइम्स a इज मीन्स इक्वल साइन 70. ये सारे बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे इक्वेशंस हमारे बन रहे हैं. नाउ कमिंग टू फोर्थ पार्ट, द नंबर b एक नंबर है डिवाइडेड बाय 5. ये डिवाइड किससे हो रहा है 5 से. गिव्स मतलब इक्वल टू किसके आ जाएगा 6. अगर देखिए आप छोटे छोटे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट को इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम को भी इक्वेशन में कन्वर्ट करना हम सीख जाएंगे. ओके फिफ्थ पार्ट इज 3/4 ऑफ t. 3/4 मतलब 3/4. 3/4 1/5 है मतलब 1/5. 3/4 ऑफ t. ऑफ t मतलब मल्टीप्लाई वाला. तो जो मल्टीप्लाई वाला है वो अलग से नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट. वी डोंट शो मल्टीप्लाई साइन. ओके 3/4 ऑफ t इज इक्वल साइन 15. ठीक है. नाउ सिमिलरली सिक्स्थ पार्ट में हमारा क्या है 7 टाइम्स m प्लस 7. 7 टाइम्स m टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई कर दिया हमने प्लस 7 गिव्स मतलब इक्वल और गेट्स यू 77. ओके नाउ नेक्स्ट इज 7th पार्ट. इसमें क्या है 1/4 मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और नंबर में लिखा उसको x मान लो. 1/4 ऑफ अ नंबर x से दिया हुआ है x -4 गिव्स यू 4. ठीक है. बिल्कुल आराम से बनाइए स्टेटमेंट को इक्वेशन में. देन नेक्स्ट इज 8th one. इफ यू टेक अवे मतलब ले जाना मतलब कम कर देना, माइनस कर देना. अगर हम माइनस कर देते हैं क्या 6 को माइनस करना है. ठीक है. किस में से माइनस करना है फ्रॉम लिखा है 6 टाइम्स y. 6 टाइम्स y में से माइनस करना है. यू गेट 60 और हमें कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा. सिमिलरली 9th पार्ट में वी विल सी इफ यू ऐड 3 ऐड करना है. तो किस में ऐड करना है 2. इफ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z. दिस इज 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और z लिख देती हूँ मैं क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन हम ही लगा देते हैं. यू गेट 30. ओके सो इन दिस वे आई हैव कन्वर्टेड ऑल द गिवन स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म. ठीक है. और ये बहुत ही सिंपल है. बस इसको एक वर्ड को आप आराम से डिकोड करें देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द इक्वेशन फॉर्म. ओके नाउ व्हेन यू विल लुक एट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव डन इन फोर्थ में क्या था स्टेटमेंट दिया था इक्वेशन बनानी है. फिफ्थ में क्या है इक्वेशन दिया हुआ है स्टेटमेंट बनानी है. और फिफ्थ क्वेश्चन में ऑल कैन हैव डिफरेंट आंसर्स. सबका हो सकता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम एग्जाम्पल. फर्स्ट वन इज p + 4 इज इक्वल टू 15. ठीक है. किसी का मन करेगा वो लिखेंगे इसको सम ऑफ p and 4 is 50. Some will write p + 4 is 50. Some will write 4 added to p gives 50. ठीक है. तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मैं लिख देती हूँ सम ऑफ p and 4 is 50. ठीक है. बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है. वैसे सेकेंड के लिए देख लीजिए आप m - 7 is equal to 3. So we can write 7 subtracted from m is 3. थर्ड में है 2m is equal to 7. अच्छा इस सेकेंड में और क्या लिख सकते हो आप डिफरेंस ऑफ m and 7 is 3 और m - 7 is 3. थर्ड में 2
times m is 7 और you can write double of m is 7. बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं. फोर्थ में m divided by 5 gives 3. तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से स्टेटमेंट लिख सकते हैं. जैसे हम लिखते हैं अपने अकॉर्डिंग m minus 7 is equal to 3. तो इसका मैं लिखूँगी 7 subtracted from m is 3. ओके. थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे, थर्ड पार्ट में क्या है, 2m is equal to 7. इसमें आप लिख सकते हैं 2 times m gives 7. फोर्थ में आप देखेंगे m by 5 is equal to 3. तो इसमें हम लिखेंगे m divided by 5 gives 3. ओके. ऐसे फिफ्थ पार्ट आप देखोगे 3m by 5 is 6. तो इसको हम क्या लिखते हैं 3/5. इसको हम लिख सकते हैं 3/5. 3/5 है ना. सो 3/5 of m gives 6. ओके. तो बहुत सिंपल अपनी लैंग्वेज में हम बना सकते हैं. नेक्स्ट इज 3p plus 4 is equal to 25 है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 added to 4 ऐड हो रहा है किसमें 3 times p में. 4 added to 3 times p gives 25. बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट की आप लिख सकते हो 2 subtracted from 4 times p gives 18. ठीक है. और जैसे फिफ्थ आप सेवेंथ को करिएगा, एट्थ में बता रही हूँ. सेवेंथ आप खुद कर लीजिए, बहुत अभी मैंने बताया 2 subtracted from 4 times p gives 18. लास्ट है आपका p by 2 plus 2 is equal to 8. तो इसका हम क्या लिख सकते हैं 2 added to 2 ऐड हो रहा है ना. किसमें ऐड हो रहा है half of p. 2 added to half of p gives 8. Okay, so in this way I have written these statements, but if you want to write your own statement, that you can. Okay, now last question is, that is the very important question. If you have understood how to do last question of this exercise, means the foundation of your simple equations has been formed. ठीक है. अभी आपको सॉल्व नहीं करने को दे रही है, अभी सिर्फ आपको इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं. ठीक है. इक्वेशन कैसे बनाना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़कर कैसे इक्वेशन बनाएंगे हम. ओके. जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. ओके. हाँ जी. पहला क्वेश्चन है आपका set up an equation in the following cases. ये आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अगर आप समझ जाते हैं तो. ठीक है. और इसको समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, these kind of questions, its advanced version you will get in class 8th also, then 9th, then 10th. So we have to love these questions. Okay. Once you will start loving these simple equations, then you know algebra will be complete fun for you. Okay. तो इसमें हमें गेम खेलना है. ठीक है. इक्वेशन को ऐसे मत करो कि भाई अच्छा ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा सा है, इसको पढ़ना है, सॉल्व करना है. Don't do like that. What we have to do, we have to love this question. You have to read the question. First thing is read the question. Imagine the problem as it's happening with you only or with your friend. ठीक है. प्रॉब्लम को पढ़ते हुए उसको बिल्कुल अपने से जोड़ लो. We have to connect with us. Then only we will be able to establish a correct equation. Okay. See, I am telling you my way. Okay. If you will start doing these questions, you can create your own way also. ठीक है. आप अपना तरीका भी ढूंढ सकते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Maybe you can find a more simpler way than I am teaching you. Okay. So that you have to explore, and that you can do
ओके, इरफान क्या बोल रहा है दैट ही हैज़, वो अपने बारे में बता रहा है, ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर, मीन्स +7 मार्बल्स। अब किससे +7 है, किससे ज़्यादा है, हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़। ठीक है, परमीत के पास जितने भी मार्बल हैं उसका 5 टाइम्स करके और उसमें 7 प्लस करना है। फिर एक और स्टेटमेंट वो बता रखा है दैट इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, मीन्स दिस होल क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर ऑफ मार्बल्स इरफान इज हैविंग। ठीक है, इरफान के पास कितने मार्बल है, ये पूरा क्वेश्चन उसी के ऊपर है। ठीक है, तो एक तरफ, अच्छा इसमें एक वर्ड आपको लिखना है ATQ। इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम, आई कांट राइट द स्टेटमेंट इन दिस। ठीक है, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई योर एक्ट, आप क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों प्लस कर रहे हो, इसका फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है फुल फॉर्म, देखिए इसका फुल फॉर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, whatever I will write that will be according to question। ठीक है, according to question। आपने देखा इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर। देखो हम बिल्कुल स्टेटमेंट पे आ रहे हैं, 7 मार्बल्स मोर का मतलब है +7। किससे 7 ज़्यादा है, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमीत हैज़, और परमीत वाले मार्बल को हमें m लेना है, 5 × m। और फिर बता रखा है कि इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं, तो ये भी इरफान के पास मार्बल्स का एक रिलेशन दे रखा है और एक आपको डायरेक्ट बता रखा है। ठीक है, सो इट विल बी 5m + 7 = 37। दिस इज द इक्वेशन। ओके, सिमिलरली वी कैन डू सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old। इसमें जिस कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है वो है लक्ष्मी के पापा। लक्ष्मी's फादर उनके पापा हैं जिनकी एज आपको बता रखी है 49 years old। ठीक है, ये तो डायरेक्ट एज बता दी, और साथ ही साथ उनकी एज का एक रिलेशन भी बता रखा है, दोनों लिखे होंगे फादर की एज है। रिलेशन इज ही इज 4 years older। ओल्डर का मतलब भी होता है ज़्यादा, 4 साल बड़े हैं किससे, 4 years older than 3 times लक्ष्मी's एज। 3 times लक्ष्मी's की एज को हमें क्या लेना है, y years। सो द इक्वेशन विल बी 3y + 4 = 49। ठीक है, Similarly, third part we will see। हाँ जी, देखिए थर्ड पार्ट में आपका क्या है, in an isosceles triangle। Isosceles triangle you all have studied in class। Isosceles triangle किसको बोलेंगे हम, जिसकी 2 sides इक्वल। ठीक है, 2 sides इक्वल हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इन्होंने बता रखा है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल। तो इसमें तो पहले में यही पता होना चाहिए विच इज वर्टेक्स एंगल, विच इज बेस एंगल। ओके, सो द एंगल बिटवीन दिस इक्वल साइड, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल, एंड द एंगल विच इज प्रेजेंट एट द बेस, or you can say angle opposite to the equal sides, this is called base angle। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाले दोनों क्या हो गए, बेस एंगल। इनमें क्या रिलेशन दे रखा है कि जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है किसके, बेस एंगल के, एंड वी हैव टू टेक बेस एंगल बी डिग्रीज। ये बी है, ये भी बी होगा, और ये कितना हो जाएगा, 2b। This is according to question only। In this I am explaining everything through diagram। Okay, इसके अंदर हमने ट्राइंगल की 2 प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट एंगल्स opposite to
angle opposite to equal sides are equal. ठीक है, इक्वल साइड के अपोजिट में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, राइट। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, इसकी वजह से देखो अगर ये दो साइड अपोजिट है, इक्वल है, तो इसके अपोजिट में जो दो एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज सम ऑफ angles of triangle is 180 degree. This property you will learn in 6th chapter of class 7. जो आप चैप्टर पढ़ेंगे द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, उसमें आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे भी एंड यू विल यूज इट ऑल्सो, यू विल डू मोर क्वेश्चंस ऑन इट। Right now it's given in the question also that remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. इसका क्या मतलब है, इक्वेशन बनानी है हमें, इन तीनों एंगल को प्लस करके सम करना है, दैट शुड कम 180 डिग्री। नाउ दीज आर लाइक टर्म्स, दिस इज 1b, 1 + 1 2b, 2 + 2 4b, टोटल कितने b आ गए हमारे पास, 4b = 180 डिग्री। सो दिस इज माय इक्वेशन, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड all the questions of exercise 4.1 and I hope you must have understood how we are framing the equation. In this we have only learned to frame equation and how we can convert any statement to equation and vice versa also, and we have also learned how we can check that whether the given value of variable is actually the solution of equation or not. Okay, so this much you can complete. The next exercise we will discuss in our next video. Thank you.